मच्योर तो मुझे लगता है कभी नहीं हो सकती हस्बैंड वाइफ के बीच में, बिकॉज लड़ाई होना लाजमी है. So when you moved from Delhi to Mumbai, you were already married, you know. तो वो जो companionship होती है जो उस एज में आपको मिल जाती है, तो the partner becomes as good as your anchor. तो वो companionship आज भी वैसी ही है या mature हुई है या कुछ बदलाव आया है? मच्योर तो मुझे लगता है कभी नहीं हो सकती हस्बैंड वाइफ के बीच में, बिकॉज लड़ाई होना लाजमी है. नहीं, बट उतनी ही यंग है वो companionship, mature हो जाएगी तो लड़ाई बंद हो जाएगी. I think it is. It all depends from person to person. You know, sometimes you start on a certain note, then you become different, then your priorities change, then your priorities are only kids. You know, we are very close knit as a family. My wife, Mona, me, and both my boys. We are very close knit. You know. तो हम लोगों को किसी और की जरूरत नहीं होती. बेसिकली हम लोग आपस में घर में ही दोस्ती है. आपस में घर में बैठ के खुश हो जाते हैं. तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम लोग कहीं बाहर जाएं यार. Even if we have to go out for dinners, we go together, and you know. So that is what companionship is for me, you know, because now the priorities have changed, right? So सिद्धांशु जी, आपकी अपनी वाइफ से जब लड़ाई होती है तो वो मनाती है कि आप मनाते हैं? I think दोनों ने कोशिश करना बंद कर दिया. हाँ? Why? क्योंकि वो अपने आप वक्त के साथ नॉर्मल हो जाता है. अच्छा. तो जब तक गुस्सा रहता है, फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है. या तो बच्चों के साथ कुछ बातचीत शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं, और some of the other topic. So you just basically just get back into conversation somehow. तो वो मनाने वाला फेज तो मेरे ख्याल से बहुत साल पहले ओवर हो चुका है. तो लड़ाई होती है मतलब? I won't say लड़ाई, but थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट या वैसी किसी ना किसी चीज पे हो ही जाती है. Because obviously there are two, and she's also very strong-headed. I'm also very strong-headed. She's a Taurian. I'm a Leo. Oh. As per this English, हाँ. And Taurian is bull-headed. Bull-headed. I'm also a Taurian. You're also a Taurian. My God. So that is exactly what she is. You know. Taurians are bull-headed, huh? So now you know what I mean when I say strong-headed, right? You're a Taurian. So you would know that is what it is. Both are strongly opinionated, arguments, debates, and then it calms down after some time. That's how naturally it is. But opinion होना तो जरूरी है ना. I've seen people they consider people who do not talk to be good, especially women. जो opinion नहीं देती है उनको सौम्य माना जाता है, और जो opinion देती है मतलब वो जवाब देती है या back answer करती है. But I think that if you have an opinion, you should give. If you are not giving an opinion, I think that opinion शायद है ही नहीं. ओपिनियन तो होना चाहिए. नहीं, ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, बट ओपिनियंस विद एनीबॉडी, इट कुड बी योर फ्रेंड और अ co-actor or anybody. It's your insight. It is very important to exchange thoughts, but when thoughts become opinions and your opinions become your final word, these are all different stages. So when it becomes your final word, that means you are forcing the other person to believe or understand, bow down to your opinions, to agree with you. So that is when the problem happens, right? So you should also know where to draw a line. You should keep your opinion, but because we are different people, different human beings, you will always have five fingers are not barabar na. Exactly. तो अलग individual है तो opinion तो होगा. So somewhere you have to come to a common ground and then move on. True. That's as simple as that. And it has to be like that because people they say कि जब एक couple के बीच में argument होना बंद हो जाता है, the marriage is dead. It means like अपने अभी सोच लिया कि ठीक है ये dead marriage को drag करना है. It goes nowhere. Yeah. No, I think it's natural. It's natural to have debate, to have fights, because when you're living in one house, all different personalities, you tend to sort of get into all these different arguments, and obviously we are all reacting to different circumstances and situations and mindsets and state of mind and all of that. So with every different situation you are reacting differently. I could be coming home very tired and I may not like somebody saying something to me. It could be anybody, it could be my kids also.
मूड स्विंग्स तो होते हैं ना. Of course, it's natural. It's natural. Imagine if there is no mood swing at all और आप एक ही मूड में पूरे टाइम रहोगे तो यार आपको लगेगा ये आदमी पागल है. I swear. 100% ये पागल ही हमेशा मुस्कुराता रहता है. बाप रे, ये नॉर्मल नहीं हो सकता, you know. So it's And it's hormonal also, you know. it's like it could be various reasons, Yeah. you know, various reasons. So इतनी आपकी लंबी जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, थिक एंड थिन में आपके फ्रेंड्स साथ रहे होंगे, कुछ धोखे भी खाए होंगे. धोखा खाया है कभी लाइफ में? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको धोखा नहीं बोलूंगा, मैं उसको भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग, उसका आशीर्वाद मानता हूँ कि जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट किया हो और वो उसके बिल्कुल विपरीत आपके साथ कुछ करके जाता है, तो वो इतना बड़ा लेसन होता है आपके लिए, सबक सिखा के जाता है. इतना बड़ा सबक होता है कि वो आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, बिकॉज वो सबक आपको फ्री में मिल रहा है. यू नो, बस थोड़ा सा तकलीफ होती है या बुरा लगता है, बट उसके एवज में जो आपको मिलता है, इतनी बड़ी सीख मिलती है, वो आपके लिए एक लेसन हो जाता है. वो आपके फिर देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मास्टर्स डिग्री, यू नो. ट्रू. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि यार जो भी मेरे साथ हुआ जीवन में, जिसने जो मेरे साथ किया, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है. वो मुझे वो बनाता है जो मैं हूँ. राइट. जैसे इंजीनियर बनता है इंजीनियरिंग करके, तो मैं अगर जीवन को इंजीनियरिंग मानता हूँ, जीवन को इंजीनियर मानता हूँ, तो ये मेरी इंजीनियरिंग है. यू नो, जितनी भी चीजें साथ में हुई, एक्सपीरियंसेस गेन किए धोखे से, या जिसने भी कभी कुछ मेरी सोच के एकदम विपरीत कर डाला हो, तो वो मेरे लिए एक लर्निंग हो गई है, मेरे लिए वो एक लेसन हो गया है. और दैट इज व्हाट मेक्स मी हु आई एम. सो सिंस इतनी यंग एज में आप इतने हार्ट थ्रॉब बन गए थे, तब से लेकर अब तक का जो आपका फैन फॉलोइंग है, स्पेशली इन विमेन, यू नो, लाइक दे रियली लाइक यू, तो कोई ऐसा एपिसोड आप शेयर करना चाहेंगे wherein, you know, a fan of yours crossed paths or tried to flirt with you? Like अगर आप ये कहना चाहें कि नहीं, मैं अपनी बीवी से डरता हुआ नहीं मेंशन करूंगा. नहीं. मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ सिवाय महाकाल के. फैन फॉलोइंग का कोई एपिसोड? बट क्योंकि मेरी बीवी शुरू से मेरे साथ रही है, तो उसने सब कुछ देखा हुआ है, तो मुझे कोई झिझक नहीं है बताने में कि कैसे. सी, फीमेल फैन फॉलोइंग इज समथिंग दैट is most natural for any actor or for any male artist who's in this field. I think for a normal good-looking guy also, for that matter. For a normal good-looking guy, other person. And also even the guys who are not conventionally good-looking, but if they are very good at their job, they would still have crazy fan following, right? Opposite sex attraction. Always. It's biological. It's absolutely natural for a female to like a man who fits in the scheme of things, you know. So you used to tell your wife, say, ये तो पीछे पड़ गई मेरे यार, इसके बारे में सुनो. She has seen it herself. She's seen it. You know, we've gone out in publics, you know, so many years together, and she's always seen it. Even when I was a model, she used to be. I mean, we worked together also. So she used to be behind the scenes sometimes. So she's seen what kind of fan following and how females react and. How she used to react. How any woman would react. Obviously, no woman would be very happy seeing all that, because it's a difficult thing. You know how I deal with it? Yeah. Like if मेरे husband को कोई पसंद है, तो और उसे भी वो पसंद है, तो मैं बोलती हूँ कि जब तक आप रोक के रखोगे ना, तब तक ये आकर्षण रहेगा. आप जाके एक दो कॉफी पी के आ जाओ, मतलब फाइंड समथिंग बैड इन हर कि यार यहाँ ठीक है, शी इज जस्ट अनदर गर्ल. जब तक ये रहता नहीं, जब आप रोकते ना, जहाँ ज्यादा ताला लगता है बोलता वहीं ज्यादा चोरियां होती हैं. तो you should not stop someone from, you know, being with that person, hanging out. एक कॉफी कोई पी लेगा तो क्या हो जाएगा? But some women they like नहीं इससे नहीं बात करना, उसका फोन नहीं उठाना, अरे इसने मैसेज कैसे कर दिया, मतलब you can't own someone like that, you know. You should give breathing space. That is where the maturity of a relationship comes in very handy there. Yeah. So a relationship that has to be very mature to be able to do that. But I guess
to each their own. I mean, everybody reacts as per their own mindset. Yeah, that is also true. As we discussed कि 5 Yeah. उंगलियां बराबर नहीं होती. Exactly. So that's how it is, and like I said earlier, my wife has always seen it. कोई एपिसोड बताइए इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए. See, How you deal it? female fan following has been always there, and you know, being a model and then being in the band of boys. You know, when I was in the band of boys and we were doing shows all over the place. I've seen women cry. I've seen women come try to tear हमारे कपड़े फाड़ने की कोशिश, स्क्रैच करने की कोशिश. वो जैसे टिपिकल होता है, you know, 15,000 लोग सामने खड़े हुए ऑडियंस में, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब you know इतना देखा हुआ है कि it is very natural. It doesn't affect me now at all. Not that it did at that time. अनुपमा के बाद तो और बड़ा होगा. नहीं, अनुपमा के बाद और I don't know और बढ़ा है या there's a different set of audience that I have. वनराज के तो बहुत फॉलोअर्स हैं. वनराज के बहुत फॉलोअर्स हैं, obviously, and also I feel television has a very different audience. It's not the audience that I have had जो other fan clubs हैं. The other fans जो मेरी singing के fans हैं या acting के fans हैं, other than अनुपमा. But अनुपमा क्योंकि टेलीविजन है तो टेलीविजन की एक ऑडियंस बिल्कुल ही अलग होती है. वो बड़ी अजीब है, वो बड़ी इमोशनल है, वो बड़ी पागल सी है, वो हर चीज को असलियत मान लेती है, वो हर चीज को असल में रिएक्ट करने लगती है. कुछ बुरा किया तो उनको लगता है कि मैं सच में बुरा कर रहा हूँ, उनको लगता है अनुपमा एक कोई रियलिटी है. तो वो बड़ी अलग ऑडियंस है. उसमें बहुत प्यार भी मिला है, बहुत नफरत भी मिली है, बट वो नफरत भी प्यार का ही एक रूप है. क्योंकि अगर वो मेरे कैरेक्टर को इतनी नफरत नहीं करेंगे तो वो अनुपमा के कैरेक्टर से उतना प्यार भी नहीं करेंगे. क्योंकि सारी सिंपैथी अनुपमा को इस वजह से मिलती है क्योंकि वनराज उसके साथ गलत कर रहा है. तो वो वनराज कैटलिस्ट रहा ही है शुरू से ड्रामा का उसमें. तो ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है बिकॉज शो 4 साल से नंबर 1 है और ये बहुत एक बड़ा अचीवमेंट है. ग्लोबली कल्ट है. ग्लोबल कल्ट है, yes, absolutely, globally number 1, and the fan following is crazy to another level. So like जब आप मॉडल थे और जब आप हिंदी फिल्म्स में काम कर रहे थे एंड देन आप साउथ में भी आपने काम किया है, टू अनुपमा, इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा प्यार आपको किस फेज में मिला? व्हाइल वर्किंग एज अ मॉडल, सिंगर, और हिंदी फिल्म्स और साउथ फिल्म्स और इन अनुपमा? हर फेज में मिला है. really? हर फेज में. सबसे ज्यादा कौन सा फेज एंजॉय किया है? बैंड ऑफ बॉयज. बैंड ऑफ बॉयज, ओके. बिकॉज आई थिंक म्यूजिक एक ऐसी चीज होती है जो एक अलग ही इमोशन जागृत करती है लोगों में, और उसका जो रिएक्शन होता है वो एक अलग तरह का ब्लिस होता है. एक ऐसा होता है कि मुझे लगता है बिकॉज मैं स्पिरिचुअल इतना हूं कि मुझे लगता है कि जो म्यूजिक आपको सुकून दे सकता है वो कोई चीज नहीं दे सकती. इट्स अ थेरेपी. उसमें कहीं पे कोई नेगेटिविटी का स्कोप नहीं होता. अनुपमा एक शो है, उसकी ऑडियंस में नेगेटिविटी का बहुत स्कोप है बिकॉज लोग कैरेक्टर को रिएक्ट कर रहे हैं वहां पे without realizing it's only a character and not a real life. So is it the singer inside you which inspired you to become a producer of your own music video which you just released some months back? Yeah, it is definitely the singer in me because बीच में बहुत साल का गैप हो गया था मेरा. After I quit the band, मुझे सालों साल लोग यही बोलते रहे कि अरे गाना कब गा रहे हो, गाना क्यों नहीं गा रहा यार, गाना क्यों नहीं गा रहा है. तो फिर मुझे एक वक्त पे ऐसा लगा कि यार नहीं, करना चाहिए. तो मैंने 5 साल पहले रिलीज किया था सोलो सिंगल, फिर एक पिछले साल किया. अब मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ. प्लस आई एम प्लानिंग समथिंग विद माय बैंड एज वेल. Okay. With Band of Boys. So हम लोग Band of Boys also coming back. Yeah. Wow. We are planning something very beautiful. Touch wood. By God's grace, I think Nice. something Looking good should forward. happen. Yes. It will be worth the wait. So I am doing all that because I think the singing in me or whatever that inclination towards music is always going to be there as passion, and passion is very important to be pursued in whichever form, right? And we are all artists in the end. तो अनुपमा जो है में अब नया ऐसा क्या है जिसका दर्शक इंतजार कर रहे हैं, और कब तक आप प्लान कर रहे हैं अनुपमा में बने रहने का?
कोई बड़ी फिल्म मिलेगी तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, मुझे फिल्म्स के ऑफर बहुत आए थे इवन आफ्टर, क्योंकि मैं फिल्म्स ही कर रहा था। मैंने 50 तो फिल्में कर ली होंगी अभी तक, और 50 फिल्मों में से मेरी हिंदी फिल्म्स इतनी सारी हैं, फिर साउथ की हैं कुछ, एक हॉलीवुड की है, एक पंजाबी फिल्म मैंने की थी। तो फिल्म्स ही करी मैंने एसेंशियली। फिर ओटीटी कर रहा था जब अचानक अनुपमा मेरा पहला डेली शो है, शायद सभी लोग जानते होंगे। पहला डेली शो है तो मेरे लिए अनुपमा, लेकिन अब उसको 4 साल हो गए। तो 4 साल बहुत लंबा समय होता है। तो और आप बोर तो नहीं हो रहे हैं अनुपमा से? मुझे आई डोंट नो इफ आई कैन call it getting bored, but I think it is definitely a point of saturation to a great extent, because playing one character for very long But people can are giving exhaust so you. much of love to Yes, One Raj. and that is the only reason why that love is still inspiring me And to people give love more you in and that more. negative character. Yeah. Trust me, with Yeah. that physique and features of yours. Yeah. So that is what inspires me to give more and more. True. But otherwise, as a character, I've given so much into One Raj. I mean, I've created One Raj into things that have never been there, actually, you know. So जितना you प्यार get exhausted as an जी actor. जी you know? जितना प्यार वनराज को मिला, when you say ये जो आइकॉनिक डायलॉग है आपका, वनराज is back, हाँ, you One know? Raj Shah is back. So don't you feel from inside it's like in a way Sudhanshu Pandey is back, you know? वापस इतना ज्यादा लोगों का क्रेज आपके लिए शुरू No, हुआ? the show has been a very big blessing, very, very big blessing, because obviously when you do a film, it comes and goes. But when you are doing a daily show, you are there every day in people's houses. 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, तो ये मान के चलना कि यार इतने लोग देख रहे हैं, हर रोज देख रहे हैं। और आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि आपके कैरेक्टर को आप कैसे इंटरेस्टिंग बना के रखते हो। So for me, it has been 4 years. That is why I said that as an actor, I'm exhausted giving out so much into that one character for 4 years. So definitely, I would want to also start experimenting with other roles now. Not that I want to give up on Anupama, but a little time I want to take out of this and give it to something where I can also start experimenting and growing as an actor with other characters. Like music videos, as you said, Band of Boys is coming back. Yeah, let's see. Musically, obviously, we'll keep doing something. तो वनराज और अनुपमा के जो फैंस हैं, प्यार करने वाले हैं, उनके लिए क्या नया एक्साइटिंग है अभी आगे देखने के लिए? आई थिंक ऑडियंस को ये बात पता ही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि वनराज और अनुपमा के जीवन में या हमारे शो में जो भी कैरेक्टर्स हैं, उनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा होता ही है, क्योंकि वो ड्रामा ही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी रही है। और कभी भी कुछ भी होता है, अच्छा होने वाला होता है, तो एंड में हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज दैट इज वेयर वी वांट टू टेक द हाई ऑडियंस। पॉइंट। यस, दैट्स वेयर वी वांट टू टेक द ऑडियंस एंड कीप द ड्रामा अलाइव। तो ये तो कांस्टेंट एक उसमें फैक्टर है, तो आगे भी जैसे अभी तक एक्साइटमेंट चलता रहा है, आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा। सो आई एम श्योर दैट यू आर ऑलवेज एक्साइटेड, एंड आई वांट टू रीअश्योर यू कि आप लोग आगे भी देखेंगे तो सिर्फ आपके लिए एक्साइटमेंट ही आने वाला है। तो इस पल में कुछ और खाने के लिए ऑर्डर करें, because Aromas has got everything. And whenever you're coming to Malad West, in Orbit में you should drop into Aromas. It's very good cafe. Yeah, I love that. although very spacious. Yeah, very spacious. Although I think I'm coming into a mall in India after many years. So, on that note, Sudhanshu ji, it was pleasure having coffee with you here. Thank you. And thank you for your time. आप आए। शूटिंग के बीच में सभी आप शूट पे जाएंगे आगे से। हाँ जी। तो आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और आपके दर्शकों का, वापस आप आइए, कुछ भी प्रमोट करना हो, इट्स योर हाउस, योर होम, Aromas. Yes. तो विद लास्ट मैसेज टू योर ऑडियंस। यस, थैंक यू। आप सभी लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज अड्डा अनफिल्टर्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। जय महाकाल। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता की, जय माता रानी।